ਉਸਤਾਦ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ प्रिडिक्शन चल रही है कि कुछ चल रहा है तो मैं तो पता नहीं मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वर्ल्ड कप से अभी तक हाँ। तो बहुत उल्टा ही जा रहा है कि मैच देख रहा हूँ वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मैच में मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था वेस्ट इंडीज जीत गई। वेस्ट इंडीज की विनिंग स्ट्रीक चल रही है। काम मुश्किल ही चल रहा है देखा जाए तो। इंग्लैंड का काम फंस रहा है। नेपाल प्लेड सो वेल अगेंस्ट इंग्लैंड एंड नेपाल देन लूज इट वन साइडेड टू व्हिच टीम वाज इट कल। इटली इटली। इटली हाँ। I was shocked as well कि और इटली ने chased it down in like what 13 14 overs. can't say anything these days. No, but the main reason is what happens is like क्योंकि जो इटली के ओपनिंग बैट्समैन थे both of them Right. they are brothers Right. and they are born and brought up in Australia, so they have an Italian origin background but they are born and brought up, they played cricket in Australia, हाँ. so that I think that helps in that case. It makes sense, but Hmm. by that standard shouldn't US also be performing a little better? तो यूएस वाले भी सेम ही है देखा जाए बट आई थिंक यूएस इज ट्राइंग हार्ड, इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट वर्किंग आउट इन देयर फेवर। Right. All right. Before we proceed, all of you guys, welcome to the fan stand. Here you will find these two fans discussing the ICC T20 Men's World Cup. In this video, we're going to preview the India versus Namibia match that happened last night. And we're also going to preview the fixture of this tournament, India versus Pakistan. And I'm joined today by my cricket expert, the biggest fan I've known of this sport, Puneet Singh Sidhu. Puneet, what's up? बस ठीक है उस्ताद, चल रहे हैं। जो शॉकिंग वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा है तो जो मैं सोच रहा था इट्स लाइक रियली बियॉन्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, एंड आई थिंक इट्स गोना गिव मी मोर यू नो रिएक्शंस Right. इन द कमिंग फ्यूचर। I mean, Abibi, you've got Zimbabwe playing Australia, and यस। Zimbabwe set a target for 169 for two, and Australia chasing right now. It is the 17th over, and the score is 129 for six. They need 41 runs in 18 balls. एज वी स्पीक। World champions. मतलब while we were growing up, ये सबसे खतरनाक टीम हुआ करती थी. They're also the पता है। defending ODI World Cup champions. चलो चलो फॉर्मेट चेंज हो गया, चलो वी कांट कंपेयर दैट बेस्ड ऑन द फॉर्मेट आई से, बट स्टिल जो भी कुछ हो रहा है कि बुरे हाल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के। Bro, इट्स नॉट like गोइंग वेल फॉर देम। every single marquee player in this Australian team is getting injured and इन्होंने पंजाबी में कहते हैं ना खिंच तू के इन्होंने एक आधा कैप्टन फड़िया सेगा, इन्होंने एक आधा कैप्टन जो है वो खींच खांच के कहीं से अरेंज किया, मिच हम्म। मार्श। और उसके भी प्रैक्टिस में बॉल बजी है, और बॉल सिर्फ उसके नहीं बजी है, बॉल ऑस्ट्रेलिया की ही बजी है अब। हम्म। कि मतलब वही मेन प्लेयर था देखा जाए उनका, एज अ बैट्समैन दैट सपोर्टेड ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट, इवन एज अ गुड ही इज अ गुड कैप्टन एज वेल। exactly. Like हम्म। he under his captaincy, Australia won the World Cup, right? डेफिनेटली। Uh, but I don't know. We'll keep an eye on that as we chat. Um, हम्म। but Ustad, let's preview the India versus Namibia match. So India came into bat first. Ishan Kishan and Sanju Samson opened the batting. Abhishek Sharma, उस्ताद की जैसी अभी किस्मत चल रही है, he predicts a player and he doesn't play the match. He had a stomach infection. मैं जिसको भी प्रिडिक्ट करता हूँ आगे मैच या पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं या उसको कुछ हो जाता है, बाहर ही निकल जाते हैं। So we're gonna talk about our predictions because both of us have had दिल्ली की विकेट जो है वो सिर्फ छड्डो इंडिया के लिए छड्डो यार स्टिकी इस नहीं थी, बात। वो हमारे लिए भी स्टिकी थी. But again, Ishan Kishan coming to the fore, playing the kind of innings that he's been playing for the last month, I'd say. And then Sanju Samson No, came not in. not last month. Even in the SMA 80 Syed Mustaq Ali Trophy, he was playing the same thing.
राइट, आई मीन एट एन हम्म। इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज ये आदमी को कोई या। एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा था, एंड सडनली केम इनटू द न्यूजीलैंड सीरीज, एंड हम्म। it was Sanju Samson was supposed to be part of the playing 11 उस time तक, like for this World Cup team, and suddenly he हम्म। has two great matches and संजू का पत्ता ही एकदम से कट गया. um, संजू कुछ कर ही नहीं रहा। संजू डर डर के खेल रहा है मेरे हिसाब से तो। मतलब I उसने felt that. इंटेंट अच्छा दिखाया था, जिस बॉल पे जैसे आउट हुआ हल्का सा ऐसे चिप कर दिया। Right, I mean Like, there was no clarity in it, मतलब the way I see it, कि यार as a player and especially when you're playing T20, you have to back yourself. अगर if you want to swing your bat, you swing it hard. That is what a Shivam Dube does. That is what a Hardik Pandya does. That is what an Abhishek Sharma does. And छक्का गया तो गया, नहीं गया तो एटलीस्ट बाउंड्री पे कैच जाएगा ना. मतलब दिस वाज अ वेरी हाफ हार्टेड शॉट, अ वेरी सॉफ्ट डिसमिसल. बट आई विल से, considering everything that we've seen Sanju struggle with, yesterday was perhaps one of the best innings we've seen from him over the last 6 to 8 months. So, वो तो फिर 22 रन मारे हैं उसको, आप वेस्ट इंडीज कंसिडर करते हो, फिर तो उसको but इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। बट यार सिर्फ आठ आठ नौ बॉलें खेल के, आई मीन द पॉइंट इज के इट गेव द टीम मोमेंटम. तो पावर प्ले में इंडिया डिड रियली वेल, एंड आई थिंक दे सेट अ रिकॉर्ड yesterday फॉर द हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप. हम्म। And obviously, from an opener, like compared to Test cricket or ODI cricket, this is exactly what you expect from T20 cricket. कि बॉलें कम खेलो, जितने रन मार सकते हो आप मारो. एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम दे डिड अ रियली गुड जॉब. कैप्टन कल नहीं, he didn't, it didn't seem like he could feel the ball. मेरी प्रेडिक्शन थी तिलक gone just like that. But then it was the Hardik Pandya and Shivam Dube show. And है। शिव दुबे ने क्या किया कल? bro, Hardik Pandya and Shivam Dube yesterday gave us the biggest sixes of the tournament. So number तो one is ठीक है, Hardik पर Pandya. शिवम दुबे को थोड़ी, तो आपने उसे एक दो छक्के मार दिए तो उसको वो थोड़ी कि उसने अपनी बैटिंग का रोल Bro, कंप्लीट as कर दिया। as a finisher, like in considering everything, for me, man, I have started believing in Shivam Dube. Like when what you would expect from a Surya or from a Tilak Verma, आप वो हम्म। चीज एक नंबर 6 नंबर 7 बैटर से आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे. एंड आई वुड से कि अगर आप टेल एंडर्स को देख रहे हो, नॉट टेल एंडर्स, लाइक अगर आप फिनिशर्स को देख रहे हो, आई स्टिल हम्म। थिंक दैट शिवम दुबे डिड अ लॉट बेटर दैन रिंकू सिंह, हु ऑल्सो गॉट हिम रन आउट, अरे which तो was very tragic. रिंकू सिंह इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द लास्ट कपल ऑफ मैचेस वी हैव सीन, कि Right, भाई उसका स्कोर एक दो रन से ऊपर जा ही नहीं रहा। right. तो I think इफ यू लुक इनटू दैट, कि मेरे तो ऐसे लग रहा है कि आपने ही रिंकू सिंह को बैक बैक किया था, याद करो। right, जब पहले मैच में था, ये सेड right, विल यू right, सी, right. वुड यू लाइक टू सी पोटेंशियल रिंकू सिंह, आपने पूछा हाँ, था। तो right. देखा जाए तो आपने बैक किया, आपका प्लेयर ही नहीं चल रहा, मैं तो उसको डाल के राजी नहीं था टीम में। I don't know, मेरे को मतलब आई स्टिल बिलीव इन रिंकू, बट आई फील जो संजू सैमसन का प्रॉब्लम है, इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट. इट इज अ केस ऑफ के रिंकू जिस पॉइंट पर आता है बैटिंग करने के लिए, इट इज लाइक his mind is buzzing. मतलब maybe he should stop taking his pre-workout before he comes to bat, because he started thinking कि मैं सिंगल भी लूंगा, मैं छक्का भी मारूंगा, मैं चौका भी मारूंगा, मैं, like he tries to do too much. And see, I think Puneet, you would agree with this, कि when you come to bat and especially lower down the order, you need to have absolute clarity of thought कि मैं आया हूं, मैंने किस बॉल पर क्या करना है, किस बॉल को कैसे रिएक्ट करना है. द मोर यू थिंक कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, एंड आप उस चीज में ही फंसते हो फिर. नहीं, बात तो सही है। चलो, दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ क्लियर थॉट इन माइंड व्हाट यू वांट टू डू बिफोर यू राइट, गो ऑन टू बैट, राइट? कि राइट, आपको अपना पता है कि मेरा रोल क्या है इस टाइम पे। एम आई राइट, सपोज टू एंकर द इनिंग, एम आई सपोज टू फिनिश द इनिंग्स, और एम राइट, आई सपोज टू जस्ट बी देयर, जस्ट राइट, फॉर सेविंग द टीम, फ्रॉम अ कोलैप्स। राइट, इट इज जस्ट उस पर डिपेंड करता है, और वो ही शुड बी क्लियर इनफ इन हिज माइंड दैट हिज जॉब इज टू फिनिश द गेम। राइट. बिकॉज हियर इज समथिंग, अगर इंडिया का मिडिल ऑर्डर, इफ दे डोंट गेट देयर एक्ट टुगेदर, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप
we will discover that Arshdeep has also turned into an all-rounder who can bat. He might have to start coming at seven to bat, because at least he is swinging the bat. He is trying to do something. Hmm. But again, just wrapping up India's batting, I think there were a few performances that really stood out. Up front, they had an amazing power play. They scored what? 86 for 1, set the record. Um, उस पॉइंट पर एक्चुअली लग रहा था कि उस्ताद, लाइक वी वर डिस्कसिंग के वी कुड क्रॉस दैट 300 मार्क. मेरे को देखा जाए तो उस टाइम पे लगे देयर वाज होप था कि कर सकते हैं, बट राइट. गिवन दैट ओनली इफ स्काई परफॉर्म्ड, राइट. और या तो फिर हार्दिक पांड्या जैसा बंदा थोड़ा और टिक जाता, राइट. तो वही होप था। बट गिवन उसके बाद जब पता लगा कि ईशान किशन की विकेट चली गई है, तो थोड़े होप डाउन हो गए थे कि नहीं यार अब नहीं होगा। राइट. क्योंकि ये तो पता है कि तिलक वर्मा थोड़ा अपना, उस तिलक वर्मा का भी दिन है कि किसी दिन तो वही बहुत बड़े बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेलेगा, राइट. वरना किसी दिन तो वो जस्ट लाइक ट्राइज टू मेंटेन द स्ट्राइक रेट की 120 स्ट्राइक रेट, 125। राइट. um हम्म। I don't know. I look at Tilak and I get this feeling that maybe one of the briefs that he's gotten from the team management is, in the absence of Kohli, you need to, like, you are that one player bang in the center of this entire batting lineup. So हम्म। you have these aggressive attacking players all around you. So you will have to take the onus upon you to anchor the innings and play that supporting role, and rotating the strike. But हम्म। I don't know. It becomes a case of कि किसी player की natural game क्या है, and maybe it doesn't work. Like US के against we lost so many wickets. कल भी we were down to 9 wickets. So हम्म। I don't think anchor का कोई फायदा है. So if Tilak की natural game is to just घुमाओ and shoot it down fine leg and whatnot, तो then let him do that. डेफिनेटली वो तो यू शुडंट बी टेलिंग अ प्लेयर टू चेंज द गेम। Right. क्योंकि उससे, क्योंकि गेम चेंज करने से क्या हो जाता है ना कि वो अपने नेचुरल एबिलिटी भूल जाता है Right. कि वो तुम इसके दिमाग में चीजें चलने लग जाती है। एक होता है कि तुम्हारी नेचुरल गेम है, तुम्हें पता है तुम क्या खेल रहे हो, Right. एंड रिगार्डलेस रन नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे, बट स्टिल यू हैव दैट बिलीफ। Right. बट अगर तुम अपनी चेंज को अपने माइंड के साथ, तो आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज योर गेम और मैच में भी हो, तो आपका अपने आप से ही माइंड क्लैश करता रहता है कि मैं क्या Right. करूं, मैं क्या करूं, ये Right. मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत तो हाँ. नहीं हो जाएगा, मैं आउट हो गया तो हो गया होगा। हाँ. वो जब इतने थॉट्स माइंड में आए थे ना, तो इट्स हार्ड टू स्कोर रन्स, दैट्स Right. इट। So I don't know. Maybe the team's gonna go down to Sri Lanka now for their next match. It's gonna be a stressful match. So maybe they just हम्म। need a day at the spa. कि अपना जाओ, steam लो, jacuzzi में बैठो, just relax. Don't think about anything. But हम्म। India की batting में, here is the one person I really want to talk about, and that is the Namibian captain, um, Gerhard Erasmus. Bro, इंडिया स्टिल मैनेज, मतलब छोटा स्कोर नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द बैटिंग कोलैप्स एंड एवरीथिंग. 208 रन्स इज स्टिल अ लॉट. और ये हम्म। बंदे ने इन हिज 4 overs ही जस्ट गेव अवे 20 रन्स एंड ही टुक 4 विकेट्स. एंड मतलब कल वाला आई वाज वाचिंग द मैच, आई इवन पुट अप अ स्टोरी कि भाई ये बंदा जितना अनप्रिडिक्टेबल है, लाइक वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री अलग है, ये आदमी की मिस्ट्री अलग है. ये अंपायर के पीछे से बॉल फेंक रहा है. मैं वही देख रहा था, मैं क्या पैर के नीचे कभी उसका हाथ यहाँ से आ रहा है, कभी यहाँ से ही आ रहा है, कभी झुक ही जा रहा है बिल्कुल ऐसे बॉल करता करता। Bro, बस मेरे को भी समझ नहीं आया। I don't know if you were listening to the commentary, but I think at one point it was Sunny Gavaskar and another commentator, and these guys they started playing a guessing game in the com box के अब जो है, is he gonna throw it off the top or is he gonna throw it off the side? Like, what do you even say? इसका मतलब. That excites me honestly, given that हाँ. the next match, we'll talk about it in the, I think we're gonna talk about it, but जो next match होगा, तो उसके लिए इसलिए that's why I'm excited now. आई थिंक ये Given ये कि ये जैसा वार्म अप हो गया है उस नेक्स्ट मैच के एक बॉलर के लिए. नेक्स्ट मैच के लिए, जी जी। बट the point being के यार, T20 as a game, and I think Ustad you'd agree with me here. T20 is a very batting dominated format right now. मतलब ये गेम बना ही चौके छक्कों के लिए है. So
kahin na kahin, if the bowlers are finding this, this gray area, and I really loved listening to Ravi Chandran Ashwin. So, like, if you guys are into cricket and if you want to get a lot of technical knowledge, I think you should check out that channel. So he actually spoke about it कि यार जहाँ बैट्समैन जो हैं वो स्विच हिट मार रहे हैं एंड दे आर मूविंग अराउंड द क्रीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ फनी शॉट्स एंड थिंग्स कमिंग इनटू प्ले एंड आपके ग्राउंड्स भी इतने छोटे हैं तो it is only essential for the bowlers to be that experimental and invent something to constantly keep some advantage to themselves. नहीं वो तो मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ कि इतना जैसे बैट्समैन चेंज कर रहे हैं गेम को, जैसे वो डिफरेंट टाइप ऑफ अनकन्वेंशनल शॉट्स रोज निकल के आ रहे हैं। पहले मतलब पहले की गेम में ऐसे नहीं होता था। Right. बट अब उनको पता दिख रहा है कि यार भाई अगर मैं अच्छी बॉल भी डाल दूं तो भी वो रिवर्स मार के पीछे मार देंगे यार, Right. है ना। तो उसको मतलब बॉलर्स हैव टू डू समथिंग, तो Right. दैट्स व्हाई दे केम अप विद समथिंग दैट कैन पुट देम ऑफ, Right. कैन पुट द बैट्समैन ऑफ, कि अगर भाई ऐसे जा रहे हैं जाते आके पीछे से बॉल डाल दी, ही Right. डिडंट इवन उसको पता ही नहीं लगा कि भाई हाँ ये कहाँ से डाल दी। Right. थोड़ा ऐसा फील ना होने देना, उसको थोड़ा ऊपर दिखाना कि भाई मेरा हाँ यहाँ से आ रहा है, कभी हाथ यहाँ से आ रहा है, सो दैट Right. द बैट्समैन इज इन द वॉच ऑफ इट, कि ना बैट्समैन को इतना सेटल होने का टाइम नहीं देना। To keep the batsman constantly guessing कि पता नहीं क्या गेसिंग आ व्हाट्स गया. गोइंग ऑन। हाँ. Okay, so we'll wrap this up. Quickly, a quick mention for Hardik Pandya's innings. I think, as we discussed, Pandya takes time to come into the tournament. I think he's finally come into this tournament, um, playing the kind of shots we know him to play. Started slow, then eventually caught up. Played very confidently. Looked very cool and composed on the ground. So, I think great sign for India. And then moving on to Namibia's batting, they did really well in the power play. They scored no, sorry, that was my prediction. 57। They scored 57 for one. अर्शदीप को बहुत मार पड़ी है, but don't worry, Arshdeep, you'll be back. We're with you. But overall, I think Varun Chakravarti, he came in, took what, 4 wickets or something. Bumrah shot in some precise Yorkers that he's known for. And India pretty much had it in control. But overall, to sum up this entire match, we won this match and we won it by a record margin. Like, this is the most runs in defeat in T20 World Cup. But फॉर सम रीजन उस्ताद आई जस्ट कांट शेक ऑफ दिस फीलिंग कि मतलब जीते तो हैं पर वो जीत की वो खुशी सी, वो तसल्ली सी नहीं आ रही स्वाद है. नहीं, स्वाद जा नहीं आया। एग्जैक्टली मतलब ठीक है यार, बट आई डोंट नो. सो हम्म। talking about the predictions, so Ustad picked two छोड़ो छोड़ो, players. आगे 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 No, चल दे आगे। no, no, no. ना ना रहने दो यार, कहा तो Okay. दुखड़े मेरे। Ustad Rondi बहुत पेट रहे हैं. So that is why I'm going नहीं to नहीं make सब it ठीक है। slightly competitive. We're gonna start a leaderboard now. नहीं नहीं छोड़ो, कोई गल ना हुन नहीं तो की नहीं, करना लीडर क्या बोर्ड। पता, कभी भी किस्मत बदल सकती है. संजू भी तो आधे ही कल पहली बॉल पे छक्का मार ही गया ना, किसने सोचा था. वो तो आउट भी हो गया ना फिर। चलो, खेल खेल का हिस्सा है. हम्म। सो उस्ताद प्रेडिक्टेड अभिषेक शर्मा एंड अर्शदीप सिंह टू डू वेल. एक प्लेयर खेला ही नहीं कल, और दूसरे को पावर प्ले में इतनी मार पड़ी कि उसके बाद ही नेवर गॉट टू बॉल अगेन. नहीं बॉलिंग कितनी था उन्हें पूरी। 4 ओवर पाए या. मिनट था ना पाए है, 4 ओवर 52 देते हैं मेरे हिसाब ना उन्हें। मैं एक सेकंड में चेक करता हूँ यार. 3 overs, 3 overs for थ्री। 36 runs. हाँ 36 मेरे हिसाब ना, हमें ना याद है कि 12 दी सी, कोई कुट खादी उन्हें, 12-13 दी इकोनॉमी थी। 12-13 उस्ताद दी इकोनॉमी चक्की फिरदा। उस्ताद उस्ताद को 12 नंबर याद है कि कुछ 12 का स्टैट बन रहा था. वो तो मैं फिर पूरे ओवर कराते हुए थे। चलो, बट एनी हाउ, 12-13 का बंदा ही। अर्शदीप को बहुत मार पड़ी है. मेरा मेरा भी कोई हाल बहुत अच्छा नहीं था. सो तिलक वर्मा केम इन टू बैट. ही स्कोर्ड व्हाट 25 of 21 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 119. और दूसरे प्लेयर का, जिसका मैंने बहुत चौड़े होकर मैंने प्रिडिक्शन डाली थी
कि आएगा, स्क्वाड में भी आएगा और उसके बाद विकेट भी तोड़ेगा। मेरा भी पता कट गया, वो आया ही नहीं, विच हम्म। वाज कुलदीप यादव। हम्म। सो या अगले अगले मैच का उस्ताद ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हमें दोनों टीमों से दो दो प्लेयर उठाने हैं। उठा लेंगे, उठा लेंगे। देखी And जो। then talking about the power play, so Ustad predicted that India will score 55 for 1 in the power play, and I predicted 72 for 1. They eventually ended up scoring 86 for 1, but I was the closer one, so I win there. For Namibia, Ustad predicted 35 for 3, and I predicted 41 for 4. विक्टो में दोनों ने ओवर एस्टिमेट किया है। यार लगा था यार अर्शदीप कर जूगा, हुन मेरी गलती थोड़ी है, हुने भोरती उत्थे आगे। अर्शदीप का प्री वर्कआउट रिंकू पी के जा रहा है। अर्शदीप प्लीज, हम्म। आई आई रिक्वेस्ट यू, अपना प्री वर्कआउट रिंकू सिंह के साथ ना शेयर करें। और भाई की हाल करता, मेनू मेरी बेइज्जती करा दी तुम सारे मुझे। All right. So that was India versus Namibia. Now let's move on to the next match, the big fixture, जो आई थिंक 3-4 दिन पहले तक तो वो मैच होना भी नहीं था, एंड नाउ इट्स हैपनिंग एंड सडनली we're all playing catch up, which is ओ India वो versus वो ना Pakistan. पाकिस्तान पाकिस्तान रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह बैठा था ना, कि हमें कोई मना ले, हमें फुसला ले। ट्रू, नहीं यार, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड यार ना अच्छी लगे तुम खेड़ा छुड़ा सकते हो। आई अरे स्टिल आई स्टिल होल्ड टू माय एनालॉजी of a रिश्तेदार whose entire purpose to come to हाँ, an event is इट्स to मोर ऑफ रिस्क। um, but India playing Pakistan, it's gonna be an intense match. I हम्म। think we were pretty confident early on, but पिछले दो मैचेस में जो बैटिंग का हाल देखा है, थोड़ा सा उस्ताद, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे को थोड़ा सा तो डर लगना शुरू हुआ है, थोड़ा सा। थोड़ा हजे ठीक है, कोई नहीं, हजे थोड़ा थोड़ा आऊगा गां जाके। Okay, so Ustad, let's start with the pitch and the toss. So the match is gonna happen in Colombo. It is gonna हम्म। be a slow track, a sticky wicket. Ball बहुत turn करती है उधर. हम्म। What are your thoughts on that pitch? Like for this सी Indian team and for this Pakistani team? सी द एवरेज स्कोर अराउंड इन T20 गेम्स इज अराउंड 160 देयर। ठीक है, कि देखा जाए कि बॉल थोड़ा रुक के आती है और थोड़ा टर्न अच्छा मिलता है। Right, तो व्हाट आई हैव टू से इज कि अगर आप जैसे टॉस जीतते हो तो इट्स बेनिफिशियल टू बैट फर्स्ट। right, ठीक है, क्योंकि भाई अभी क्योंकि स्टार्टिंग में पिच थोड़ी फ्रेश रहती है। right, तुम बॉलर्स को अच्छे रन मार सकते हो स्टार्टिंग में। right, फास्ट बॉलर्स आएंगे, उनको पीटो। जो थोड़े स्पिनर है स्टार्टिंग में उनको इतनी ग्रिप नहीं मिलेगी जितनी आफ्टर, जब विकेट थोड़ी यूज हो जाएगी उसके बाद मिलेगी। right, So if you win the toss, I'll say it's good to bat first. I think right, even the stats say that most of the teams, I think they decide to bat first. right, तो उसके बाद जब थोड़ी पिच थोड़ी यूज होगी तो सेकंड इनिंग में आके बॉल अच्छी टर्न होगी। right, बट इंडिया हैव टू मेक सम चेंजेस टू द लाइनअप इन दैट रिगार्ड्स, जो हम आगे बात करेंगे। right, बट सो अभी तक मेरे को लग रहा है कि if any of the teams win the toss, they should likely bat first right. and score, like try to score runs early on, because उसके बाद पता है कि थोड़ा गेम स्लो हो जाएगा। हाँ, सो अगर गेम स्लो हो जाएगा, रैश गेम नहीं खेलनी है, आउट नहीं होना है। right. ट्राई टू स्टे देयर एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर रन। Right. And also the boundaries are नो, वे further बिगर, out. Huh. वे बिगर देन I इंडिया। think it's gonna be a lot more of trying to rotate the strike, taking your twos and threes and being quick between the wickets and not really going for sixes from the first ball. Uh, Definitely. And I'd also like to highlight one more thing. huh. Pakistan has some advantage over, because Pakistan has already played in those conditions already. Right. पाकिस्तान को पता है कि क्या चीज वर्कआउट करेगी क्या नहीं करेगी। उन्होंने दो अपनी गेम्स खेल चुके हैं श्रीलंका में, एंड दे नो कि कैसी विकेट्स हैं यहाँ पे। Right. तो दैट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर देम। Right.
Wait a second. I'll just what I'll do is I'll just bring up the squads before we discuss what the playing 11 could look like. So, Ustad, do you want to start with Pakistan first or with India? Let's start with Pakistan. So I think Pakistan will keep the same team that they use for USA. All right, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स के ऑप्शन अच्छे रहेंगे. दे विल हैव मोहम्मद नवाज, दे हैव सईम आयूब एज right, वेल. ठीक है, right, उनके पास वो उस्मान तारिक भी है right, और अबरार अहमद भी है. सो दे हैव right, ऑलरेडी हैव फोर स्पिनर्स. ठीक है, right, शहीन शाह अफरीदी रहेंगे फॉर द पेस अटैक. दे right, इवन दे डिडंट इवन यूज. व्हाट वाज एस्टोनिशिंग वाज उन्होंने फहीम अशरफ को यूज भी नहीं किया था उस यूएस अटैक में, यूएस right, वाली गेम में. right, फहीम अशरफ इज अ बॉलिंग फास्ट ऑलराउंडर, नॉट अ बैट्समैन ऑलराउंडर. right, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ी. दे न्यू दैट द बॉल्स गोना टर्न, द बॉल्स गोना स्टिक. दे गिव एवरी स्पिनर चांस. उस्मान right, तारिक ने अच्छे किया, सईम अयूब ने भी ठीक की बॉलिंग, शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की. और right. उसने अबरार ने भी की थी ना शायद. हाँ, अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग की. I honestly did not watch that match. Maybe it is just there's too आई थिंक much. अबरार नहीं खेला था. आई थिंक अबरार डिडंट प्ले दैट गेम, और डिड ही? शादाब प्लेड, आई थिंक मोहम्मद नवाज प्लेड, Right. एंड सईम अयूब बॉल्ड, एंड आई थिंक उसके जो और है, कौन सा गया वो? I just know that Fahim Ashraf really played well as a batter in that game, I think. नहीं नहीं, उस यूएस वाली गेम में तो एक रन पे आउट हो गया था वो. Acha, then it was maybe the next one. द फर्स्ट वन वाज विद नेदरलैंड्स, उसने उसमें परफॉर्म किया था. Right, तो पहली that गेम one. थी. तो हाँ, सेकंड गेम वाज विद यूएसए. यूएसए वाले में, हाँ. तो मोहम्मद नवाज, शादाब खान, सईम आयब और उस्मान तारिक थे. सॉरी, अबरार अहमद नहीं थे उस गेम में मेरे हिसाब से. right. बट या उसके बाद और थे, शहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की थी मेनली. Right. Hmm. So If you can you pull it up? I think I probably might be missing something. उसको अगर वो उनके मैचेस पुल कर सकते हो आप, if you click on पाकिस्तान टीम right, what I'll do is फिक्सचर्स एंड रिजल्ट में आ जाएगा. so you want Pakistan पाकिस्तान versus वर्सेस US. यूएसए. यस. Right, there you go. I just want to see who. No, अबरार अहमद played as well. Yes, that's great. हाँ. Right, तो अबरार अहमद और सईम अयूब भी थे. मतलब कि बस वो लोग चार स्पिनर थे, चार नहीं पांच स्पिनर्स थे, एंड दे हैव वन पेसर. right. So you've got Abrar Ahmed. Usman Khan is also a spinner. इन्होंने, he's a keeper, wicket keeper. Okay, They got Shadab Khan, right, Mohammad Nawaz, right. and they got Saeem Ayub. And Usman Tariq. उस्मान तारिक नहीं खेला था अच्छा इसमें. हाँ, आई मिक्स्ड इट देन प्रोबली. नहीं, और डिड नो, Usman Tariq did ही डिड not प्ले. bat, खेला but था. he did. हाँ, खेला था. ही डिड हाँ, प्ले. सो देखो उनके पास ये देखो, right, पांच स्पिनर्स हैं, एक पेसर यूज किया था इन्होंने इन गेम में. right, और वो पेसर पिटा था. चार ओवर में 42 रन. right, right. There you go. 10.5 की economy. Even Saim Ayub को भी मार पड़ी है अच्छी खासी. Like, अरे उसने एक ओवर ही डाला है उसने तो. हाँ, that's also true. एंड ही इज अ पार्ट टाइम स्पिनर एनीवे. Right. All right. So, Ustad, let's quickly list down what your Pakistan playing 11 looks like. So, starting from the top to the bottom, who do you open with? Who comes one down? अरे मैं तो कहूंगा कि सेम ही रखेंगे. Right, विल गो विद सैफजादा फरहान. right. ठीक है, और जो इनका फकर जमान, I'll do that. And Or I'll take then. because they've been opening with Saim Ayub. So, Yeah, but I'll say that कि फकर जमान के इंडिया के, I think that's what I'll change. I think right, मेरे दिमाग से वो निकल गया, जहन से निकल गया कि I think Saeem Ayub is good, but in that terms I think Fakhar Zaman has been, I think he's been performing decent against India, right, given his time. right, So I think, and he's an experienced batter, so I think I'll probably go with Fakhar Zaman and Saifzada Farhan. right. Then I'll keep जो जिम्बाबर है वहां पे, All right, और I'll keep Saman Ali Aga, so they can change their batting as it comes up. right, ठीक है, उसके बाद बाकी the same people, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शादाब खान, right. अबरार अहमद, उस्मान तारिक, एंड शहीन शाह अफरीदी. All right. So, you're not playing Saim Ayub at all in your team. I'll probably say like it's changeable. So I want either if not Saim Ayub, I will probably go for Fakhar Zaman. I want Saim Ayub in terms of spin के लिए. Right. But मेरे हिसाब से दोनों के opportunities है. I think it's 50-50. पर अगर Saim Ayub को कोई replace करेगा, it might be Fakhar Zaman who will replace for Saim Ayub. Right. Hmm. Um,
फॉर मी द प्रोबेबल 11, उस्ताद तू बस गिनती रखना, मेरे को गिनती बीच में ठीक है। भूल जाएगी. ठीक है। सो साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब टू ओपन द बैटिंग. हम्म। I do want to play Fakhar Zaman in this game, but तो it, निकालोगे किसको आप? यार वही प्रॉब्लम है. लाइक पाकिस्तान, आई नो किसी भी हालत में दे विल प्ले बाबर, बट हम्म। या सो दिस कैप्टन साहब को निकाल डिफिकल्ट. नहीं सकते। कैप्टन को निकाल नहीं सकते. ठीक है, उस्मान खान इनका कीपर है, कीपर वो कीपर और कोई है नहीं। कीपर तो खिलाना ही पड़ेगा. हाँ। ऑलराइट, लेट मी गो क्रेजी. साहिबजादा फरहान खेलेगा, साइम अयूब हाँ। खेलेगा ओपनर्स. हाँ। हाँ। वन डाउन पे आते हैं सलमान अली आगा. हाँ। Then you bring in Babar Azam at four. हम्म। At five, probably Fahim. ना, शादाब खान, मतलब फहीम अशरफ और शादाब खान तो खेलेंगे ही खेलेंगे मैच. सो कितने प्लेयर्स हो गए अपने? छ- छः। छह हो गए. एंड देन यू हैव अबरार अहमद, उस्मान तारिक, शाहीन शाह अफरीदी. थ्री प्योर हम्म। बॉलर्स. तो कितने प्लेयर्स हो गए हम्म। अभी? नौ। उस्मान खान, ऑब्वियसली द विकेट कीपर, ही हैज टू प्ले. 10। हाँ, 10. तो एक रहेगा। तो मोहम्मद नवाज रह गए ना। मोहम्मद इंडिया के नवाज रह गए. खिलाफ इंडिया के खिलाफ अच्छा, मतलब मेलबर्न वाला तो इनका याद ही होगा, बट स्टिल कर लेंगे। You know what? Actually, he's slow left arm orthodox. Do you think left arm spinner जो है, he troubles left arm batsman more than a right arm leg bowler? सिमिलर ही है, टर्न तो सेम ही रहेगी दोनों की। नहीं मतलब थोड़ा एंगल और रिलीज का भी फर्क पड़ता है ना, लाइक. बट द पॉइंट इज विद लाइक, अगर जो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जैसे लाइक अक्षर अक्षर पटेल है, ठीक राइट. है, इट्स इजी टू रीड ऑफ द हैंड। राइट. जैसे कुलदीप यादव में से आई से दैट, राइट. कुलदीप यादव भी लेफ्ट आर्म है, बट वो लेग ही है, लेफ्ट आर्म लेग ही है, राइट. ठीक है, बट वो हमारे राइट आर्म जो अपना वो दूसरा काम करते हैं, ऑफ, जैसे हम ऑफ स्पिन डालते हैं राइट हैंड से, वो लेफ्ट से राइट. करते हैं अक्षर पटेल। बट आई थिंक इट्स इजियर टू रीड अक्षर देन कुलदीप, बिकॉज कुलदीप गुगली भी बीच में डाल सकता है। राइट. It's hard to read a googly. So I think it's a left arm, a leggy left arm. It's a different. Right. So you know It's what? more I'll difficult. I'll switch out Shadab Khan. I'm not playing him in my team. I'm playing Mohammad Nawaz instead, Yeah. Then and who that else you going for? that makes a spot for Fakhar Zaman then. Okay, so you won't focus on that team. Okay, I understand. Understandable. ठीक है. Okay. Now let's talk about द मेन इन ब्लू. इधर Hmm. का क्या कॉम्बो लग रहा है? एंड उस्ताद मैं पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, व्हाट हैपेंड इन आवर लास्ट वीडियो वाज, एज सून एज दैट वीडियो वाज एडिटेड एंड पब्लिश्ड, उसी टाइम पर वी गॉट टू नो कि अभिषेक शर्मा वाज हॉस्पिटलाइज्ड, सो ही डिडंट मेक I आवर think प्लेइंग I 11. think I think you should put the screenshot of the message I sent you right after that. हाँ, मैंने आप probably ये आई डोंट रिमेम्बर उस्ताद में गाली भी निकाली शायद, नहीं आई डोंट थिंक सो. पता नहीं मेरे को, आई थिंक आई शुड, देखो मेरी किस्मत ही घटिया है, ऐसा कुछ लिखा था मैंने, आई थिंक। राइट. सो कीपिंग दैट इन माइंड, एंड ऑल्सो लाइक अभी ये इंडिया नमीबिया मैच में सूर्य कुमार वाज प्रीटी अपफ्रंट सेइंग दैट Abhishek Sharma is not going to play this match and he may not be available for a match or two. So I don't know if it's a red herring के बस पाकिस्तान को थोड़ा caught यार off मैंने guard अर्शदीप करने के सिंह, लिए. मैंने अर्शदीप सिंह की स्नैप स्नैप देखी थी, ठीक है, स्नैपचैट पे उसने वो क्या है उससे, क्या होता है, अभिषेक शर्मा भी था उस स्नैप में, ठीक राइट. है, उसको कह रहा था, वो उसको पूछ रहा था कि हाउ यू डूइंग, वो हाँ. कहता दाल चावल वेरी गुड, मी गुड। तो भाई बात जैसे कर रहा था, ठीक लगा मेरे को। भाई ये कह रहा कि लॉस्ट, ही सेड बेचारे का ही कल मुंह लॉस्ट, तो उतरा पड़ा था थोड़ा सा. नो बिकॉज ही सेड दैट ही लॉस्ट अ फ्यू किलोस एज वेल। राइट. या, हाँ. um, सो देखा जाए तो मेरे हिसाब से भाई खेल ले तो बढ़िया, वरना फिर मेरी टीम चेंज हो जाएगी और क्या। right, but I think you need Abhishek Sharma for this match in Colombo, और because लेफ्ट not just पाकिस्तान his के batting. प्रीमियम प्रीमियम फास्ट बॉलर भी तो आने हैं। True. All right, Ustad, let's go from the top to bottom. What does your team look like? ओके सो सी, भाई मेरे को कर्टेसी दे से एक दे दो कि अभिषेक शर्मा प्लीज आई गो फॉर अभिषेक, अदरवाइज आई हैव टू गो विद संजू सैमसन, गिव मी दैट, अभिषेक स्लैश संजू Okay. विद ईशान किशन, हाँ. ठीक है, सेम। उसके बाद आएंगे हमारे तिलक वर्मा,
Right. I'll then bring in Surya Kumar Right. for number 4. Right. Number 5 is probably gonna be Akshar Patel. अगर भाई जरूरत पड़ जाए तो अगर स्लो खेलने की जरूरत पड़ी तो इस हिसाब से depends Right. upon the situation. So if Right. they need to play sport, because I think they would need to play slow कि जिस हिसाब की वहां पे tricky situation आ सकती है. ठीक Right. है, then I'll take Akshar Patel, then I'll have Hardik Pandya Right. and Shivam Dubey. So they can interchange depending on the situation. Right. ठीक है, 6 बंदे हो गए. हाँ. बट अब आती है बात हमारी कि हमें बॉलिंग यूनिट कैसा चाहिए. हाँ. तो उस हिसाब से आई किक सॉरी टू से आपका फेवरेट प्लेयर रिंकू सिंह को मैं बाहर निकाल रहा हूँ. हाँ नहीं ठीक ठीक है है यार, मेरा इतना फेवरेट भी नहीं है, बट आई जस्ट फील लाइक ही इज द राइट मैन फॉर द जॉब. ना, ठीक है चलो. ऑल्सो कांट फॉरगेट एशिया कप फाइनल में रिंकू सिंह ओनली प्लेड वन बॉल एंड ही वन अरे अस द ठीक मैच. है, बस बस यार, चलो छोड़ो. अगला, ठीक है, रिंकू सिंह छोड़ के अगला मैं रिंकू सिंह को निकाल रहा हूँ. मैं आई ब्रिंगिंग कुलदीप यादव ओके. एंड देन आई हैव वरुण चक्रवर्ती. राइट. ठीक है, उसके बाद आई हैव टू किक आउट अर्शदीप सिंह. अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी. Bro, you use a better word. You don't say kick out and Arshdeep Singh together. I I have take it to as I a have to personal insult. यार देखो, सॉरी फॉर दैट. आई थिंक वी नीड टू बेंच अर्शदीप. रीजन there's no hard, it's not like I don't want him to play. I Right. want him to play. The reason is we need an extra spinner. Right. ठीक है, that would be Washington, but that could be Washington Sundar for us. Right. Given the situation, I think he might come in handy in that situation. Right. So, and he can bat as well, and Right. if needed he can bat as well. हाँ. ठीक है, तो वॉशिंगटन सुंदर आएंगे हमारी अर्शदीप की जगह. Right. और बुमराह है ही हमारे. Right. हो गए मेरे साथ. That's the probable 11, isn't it? If I'm missing out something. So you said, let me just recap it. You said Ishan Hmm. Kishan and Sanju Samson slash Abhishek Sharma Yeah. to open. Then Hmm. Tilak comes at number 3, Sky at 4, Hmm. Akshar at Hmm. 5, Hmm. um, Hardik at Hardik at 6. 6, Uh, uh, Dubey Dubey at at 7. 7. हाँ. Hmm. Then Uh, we had Kuldeep Yadav, Varun Chakravarti, हाँ. Washington Sundar, and Jasprit Bumrah. Okay. Yeah, all 11 done. So Uh, the reason, one thing I would like to point out is as well कि शिवम दुबे को मैं क्यों कह रहा हूँ. right. बॉल स्टिक करती है ना, his हाँ. slow bouncers can work out as well. कि उसकी बॉल इतनी कई और क्विक नहीं आती. If it sticks there, Right. बैट्समैन might try to play it early on. वो एज दे सकते हैं या बॉल को खड़ी कर सकते हैं हवा में. Like I think he's got a very awkward pace where ऑकवर्ड like पेस कि उसका कोई भरोसा नहीं होता कि 120 इतनी. something I think. हाँ, तो उसकी बॉल तेज भी निकल सकती है, स्किड भी कर सकती है, या उसकी बिल्कुल स्लो रह सकती है. सो गिवन Right. दैट, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू बॉल एज वेल. Right. और क्योंकि इंडिया के पास अभी अगर फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ी, दे हैव हार्दिक पांड्या एज वेल. सो देखा Right. जाए हमारे पास तीन तीन पेसर्स हैं, उनमें से चलो एक पार्ट टाइमर है, बट हार्दिक पांड्या हैव बोल्ड 4 overs इन मल्टीपल टाइम्स इन अ T20 Right. गेम. ही हैज बीन द मेन बॉलर. हाँ. जसप्रीत बुमराह हमारे मेन बॉलर हैं दो. एंड आई विल लाइक टू कीप 3 स्पिनर्स. ठीक है, 3 भी नहीं, 4 है हमारे पास. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड वॉशिंगटन सुंदर. Right. बट सी आई एम स्केप्टिकल इफ भाई देखो, मेरी जैसी किस्मत चल रही है, मेरे को गंभीर पे कोई भरोसा नहीं. जो मैं कहता हूँ उल्टा कर देता है. वो क्या पता अर्शदीप को रख ले, वॉशिंगटन को ना लेके, अर्शदीप को ही रखा रखे और 3 स्पिनर्स के साथ खेल ले. विच इज अ गुड पॉसिबिलिटी एज वेल. हाँ. डेफिनेटली इट इज. बट नो कि यार मैं वही हूँ कि मेरा भी इसमें फिर वही है कि वॉशिंगटन सुंदर स्लैश अर्शदीप सिंह. Right. Okay, so the 11 for me, Ustad, again, keep count. My top 4 remain the same. So you've got Abhishek slash Sanju and Ishan Kishan, Sky and Tilak Verma. Number 5 per, I would have Hardik Pandya. Number 6 पर शिवम दुबे की bowling के लिए नहीं, but I think I might pick him for his batting because he is known to be exceptional against spin. And if Pakistan comes with a spin heavy attack, I think we really need that player. गुड पॉइंट आउट, गुड पॉइंट आउट. लाइक इट. Also, like out of all the players, I think Abhishek and Shivam are the 2 players जिनका actually range hitting उस level का है that they can clear those long boundaries as well. डेफिनेटली. So I think
Shivam stays in my team, but it's like I am just confused if I'm confused between Shivam and Washi because Washi again as an all-rounder आपको वो spin भी देगा and you need that extra spin option and हम्म। बैटिंग में Washi is not really known for his batting but अगर दो तीन बॉलें खेलनी भी पड़ी चलो थोड़ा बैट घुमा लेगा. हम्म। um, but okay, let's keep it to Dubey for now. ओके। Right, कितने प्लेयर्स हो गए अपने? छः। छः and अक्षर 7. सात। हम्म। Right, this is where it gets interesting. I'm playing Varun and Kuldeep, both of them. हम्म। कितने हो गए अभी? 9. 9, 2 रह गए। हाँ. Um, Bumrah, of course, would play. Like he's got a good record against Pakistan, and you need Bumrah in your high pressure matches. डेफिनेटली यस। And Arshdeep, I will still keep him in the playing 11 because I read a stat that Babar Azam and another player they really struggle against left arm seamers who can swing it both ways. हम्म। And I think on this kind of pitch, Arshdeep also has a lot of good variations with like his slow bouncers and stuff. So with हम्म। जब बाउंड्रीज आपकी इतनी बड़ी हैं एंड यू नो हिट द डेक एंड यू गो फॉर दोज स्लो बाउंसर्स आई थिंक बैट्समैन को फंसाने का चांस है. ठीक है। सो आई थिंक दैट seems to be my team. So I think overall I've just said it is gonna be an unchanged team, right? या डेफिनेटली। हम्म। Nee, I've brought in Kuldeep. यू ब्रॉट इन कुलदीप या इंस्टेड ऑफ हाँ, रिंकू सिंह। instead of Rinku, yes. पर रिंकू सिंह दिखेंगे हमें मेरे हिसाब से फील्डिंग करते। हाँ फील्डिंग करते देखेंगे. um, हम्म। there is only one point though, like in both of our lineups we have gone for one extra bowler instead of an extra batsman, हम्म। whereas what we've seen with India since in this entire T20 cycle is हम्म। they've always preferred to go with like eight एक्स्ट्रा बैट्समैन। batsmen. um, तो and I इसीलिए think इसीलिए मैं वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहा था। right, दैट्स द ओनली रीजन दैट आई right, वांटेड वाशिंगटन सुंदर एज वेल कि हर्षदीप को चलो रिप्लेस करके स्पिन फेवरेबल विकेट है प्लस वॉशिंगटन हैज गॉट दैट बैटिंग एबिलिटी मतलब ऐसे नहीं कि बहुत छक्के मारेंगे ये करेंगे बट ही right, कैन स्कोर मोर देन हर्षदीप इन right. सिचुएशंस। But there is another reason. उस्ताद तू फिर बोलेगा कि मैं तो अपने फेवरेट प्लेयर को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ. But point being, when it comes to running between the wickets, I think um, Rinku Singh is superior to Shivam Dube. अरे यार डाल लो So उसको मैं तो कह रहा हूँ डालो। अभी अभी 2 मिनट पहले क्या कहते थे कि शिवम दुबे की स्पिन अच्छी अच्छी खेलता है लंबे मारेगा ये हाँ. करेगा लॉन्ग हिटिंग रेंज है उसकी ये है वो है अभी उसको फिर से निकालने को फिर शर्म कर लो उस्ताद। Right. So I'm locking down Shivam. I'm keeping out Rinku. ओके Okay, so गुड। that is my playing 11. Guys, whose playing 11 is closer to the team that's actually gonna be on the field tomorrow? Please drop it in the comments. Or if you've got your own playing 11, usko bhi comments mein dalo. The more the merry. And जी। okay, so we've discussed the द प्लेइंग pitch. 11। We've discussed the playing 11. Now start the spicy bit. हाँ जी। Predictions. हाँ यार मैनू ना बसाओ यार मैं नहीं कर और यार। All right. ओके So चलो 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 मजाक उसमें भी मजाक। जिम्बाब्वे अपना नमीबिया में मैंने छोड़ दिया था बट बिकॉज वी नो पाकिस्तान की टीम ऑल्सो सो यू हैव टू गिव मी अ बैट्समैन एंड अ बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अ बैट्समैन एंड अ बॉलर फ्रॉम इंडिया. ओके आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दैट बॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है मैं देखना चाहता हूँ कैसे परफॉर्म करेंगे इंडिया के खिलाफ। आई एम गोइंग ऑल इन। फॉर I'm तारिक I'm शाह. going for Usman Tariq. Yes. राइट. ठीक है बैट्समैन I'll go with I'll probably go with शाहिबजादा फरहान। ओके. यार बाबर आजम से मेरे को उम्मीद नहीं है कि इंडिया के खिलाफ कुछ ठीक कर है लेगा भाई. वो। फरहान फरहान साहब को भाई कॉन्टैक्ट्स फरहान है सर डॉक्यूमेंट्री बनवाने के. अरे डॉक्यूमेंट्री भी बनानी है तुझी और क्या दूसरी डॉक्यूमेंट्री भी तो निकालनी है अभी। हाँ. अभी एक छक्का चलो और पड़ेगा बुमराह के और एक और डॉक्यूमेंट्री आएगी. आएगी 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 चलो चलो वैसे चलो वो बात की बात है। हाँ ये इंडिया मेरी से. प्रिडिक्शन इंडिया से मेरी प्रिडिक्शन आई विल गो विद
सूर्य कुमार यादव। ओके। एंड फॉर बॉलिंग आई गो विद कुलदीप यादव। ओके। हम्म। ओके सो मेरे लिए खिला लियो हुन यार प्लीज, ऐ ना करो कि मेरे बंदे नु ही काट दो, कुलदीप नु खिलाओ ही ना तुसी। उस्ताद तुमने उठाया ही कैप्टन है, कैप्टन को तो कोई बाहर करना से रहा नहीं। तो एक चलो प्लेयर तो तुम्हारा कुलदीप। गारंटीड खेलेगा तो सही। कुलदीप। कुलदीप। I really wanted to see Abhishek, but Abhishek वो नहीं खेलेगा ना शायद से, इसलिए I'll say go with Sky। ओके सो हम्म। पाकिस्तान के लिए मैं फखर जमान डाला था क्या अपने प्लेइंग 11 में? तुमने आपने डाला था जी। हाँ। यार नहीं, यू नो व्हाट, अपना फहीम अशरफ। यू गोइंग विद फहीम अशरफ? यस। भाई वो भाई वो ठीक है। वो आदमी ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट वो एक अलग से जहर के साथ खेलता है। सो चलो चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो प्लस फहीम अगेन अशरफ दैट ठीक है। स्टिकी विकेट एंड दैट वियर्ड पेस, मतलब जैसे शिवम दुबे की आती है। ठीक है चलो फिर। बॉलर है, आपने एज अ बॉलर चूज किया उसको, ठीक है। नहीं, चलो ऑलराउंडर है बैट्समैन। वो, कुछ कुछ भी करे तो मेरे लिए तो चल जाएगा ऐसे ना। नहीं है, ऐसा नहीं है। एज अ बॉलर बताओ या एज अ बैट्समैन बताओ, भाई एज अ ऐसे गेम। ऐसे मतलब अपन क्या ऑलराउंडर पिक ही नहीं करेंगे ना क्या ना कभी? ना ना ना। उसको ही बताएंगे ना किसका रोल क्या है। अगर मैंने शिवम दुबे पिक किया, मैं कहूंगा अच्छा कि एज अ बैट्समैन खेल रहा है। चल, अशरफ एज अ बैट्समैन। हम्म। यार अशरफ के फखर। एज अ अशरफ। बैट्समैन। अशरफ अशरफ एज अ एज बैट्समैन। अ ओके। ओके ओके ठीक है ठीक हाँ। है। विकेटें तो गिरेंगी पाकिस्तान की, इतना मैं बोल सकता हूँ। चलो ठीक है, आगे आगे और बताएं नंबर आगे। 6 7 वालों का भी मौका आएगा। हम्म। पाकिस्तान बॉलर। यार एक तो तुम ना मेरी सारी प्रिडिक्शनें पहले तुम बोल लेते हो। ना होस्ट होने का ही फायदा है। ट्रू। किसको डाला जाए, मेरे को एक बारी स्क्वाड पे से देख लें। आई वुड से नवाज। ओके फिर। ओके। और इंडिया की तरफ से लेट मी से, मेरे को लग रहा है यार तिलक फिर से कुछ करेगा। चलो देखते हैं, चलो तिलक ठीक है। हाँ। यू गोइंग विद एशिया कप वाइब। हाँ तो तिलक वर्मा। एंड एंड उन्हें कुछ नहीं हो गया बस उन्हें। अरे नहीं, मेरे को बॉलर भी तो पिक करना है इंडिया का। अच्छा हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। वाह वो उस्ताद, तुम एक प्लेयर तुम ऐसा पिक करो जो इसका पता नहीं टीम में खेले ना खेले, मेरे को तुम पिक ही एक दे रहे हो। कौन दे रहा हूँ पिक में? ओके। मेरे को ऑनेस्टली लगता है वरुण चक्रवर्ती पर इन्होंने बहुत रिसर्च करी होगी। वरुण चक्रवर्ती को थोड़े बच के खेलेंगे। हम्म। और यार तुमने फिर कुलदीप यादव पिक कर लिया, मैं क्या करूं? कर मैं लो पिक। चक्रवर्ती, चलो अब क्या करें। ठीक है। ओके। अभी क्या है यू कि गॉट। आज की प्रिडिक्शन है जिसकी ज्यादा सही आएंगी, अगली अगली वीडियो में पहली प्रिडिक्शन उसे मिलेगी। ठीक है डन। ठीक है, डन होस्ट होस्ट कोच कुछ नहीं है। डन डन डन। हाँ। सो एंड पावर प्ले, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। Okay, so I'll go with India will be 50 runs at the end of the power play. 52 runs हाँ। for the loss of 1 wicket. ओके। और For पाक। Pakistan, I'll say they would be 44 runs for the loss of हाँ 2 wickets. ठीक है। Hmm. मेरे लिए आई वुड से इंडिया गोज फॉर 48 फॉर 2। आए इंडिया। बहुत क्लोज खेल रहे हो आप। अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म। नहीं यार, मेरे को लग रहा है, मेरे को मतलब। 48 for 2 ठीक है, दैट्स डिसेंट आगे अच्छा। हाँ। पाकिस्तान, I think it's gonna be pretty close. So Pakistan, I would put it 46 for 1। ठीक है। फॉर वन, ओके, सो आप कह रहे फॉर हो इंडिया वन। ज्यादा विकेट लूज करेगा, ठीक है।
Pakistan, मतलब यार, I think Pakistan also because they have an advantage of knowing this pitch and this ground really well. Like they're And gonna play all their matches on this pitch. hmm, तो वो थोड़ा बच के खेलेंगे एंड ट्रेडिशनली ऑल्सो पाकिस्तान लाइक्स टू प्ले थोड़ा विकेट बचा के एंड देन अटैकिंग टुवर्ड्स hmm. द एंड. डेफिनेटली। एंड एक चीज मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हु बैट्स फर्स्ट, कि जिसने अच्छी बैटिंग की है उसके रन ज्यादा आ सकते हैं पावर प्ले में, जो रेदर देन की जो सेकंड बैटिंग करेंगे। राइट, सेकंड सेकंड बैटिंग वाला थोड़ा ज्यादा बच के करेगा एंड लाइक हम्म। दैट स्कोर बोर्ड प्रेशर ऑल्सो इफ इट कम्स इन टू प्ले. यस। बट उस्ताद, what do you feel? मतलब ये I'm not putting it in the prediction card, but what do you think the score of the match is going to be? Like what does the target look for you on this kind of a ground? अराउंड 170-ish रन्स। Okay. कांट से मोर देन दैट। मेरे को पता है, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है, it's gonna be like 150 152 types, really low डेफिनेटली scoring. कि एवरेज स्कोर यहाँ का 140 टू 160 है। तो Right. आई एम पुटिंग इट अप कि चलो भाई अगर इंडिया ने बैटिंग 170 तक पहुंच जाएंगे, इफ नॉट देन इट वुड बी अराउंड 150 टू 160 मार्क। Right. हम्म। कूल. भाई बहुत बहुत स्ट्रेस है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ. मेरे को अब थोड़ा मेरे को डर लगना शुरू हुआ है कि, और स्पेशली उस्ताद, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है, बट इधर इंडिया में वी अब वॉच क्या द बना गेम ऑन जियो ऑस्ट्रेलिया? हॉटस्टार. ओह सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का क्या बना? आई थिंक मैच खत्म ही हो गया अभी तो. हम तो अमेजोन प्राइम पे ब्रो, देखते हैं भाई। जिम्बाब्वे वन बाय 23 रन्स. ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट फॉर मैं क्या, 146. आई टोल्ड यू ऑस्ट्रेलिया इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम मैन। उस्ताद, मैं क्या बोला था पिछली वीडियो में कि इस हफ्ते में हमें डेफिनेटली एक अपसेट तो देखने को मिलेगा. मिल गया मिल गया मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. छोड़ो छोड़ो, आगे चलो, लेट्स मूव ऑन। यार, हम में से किसी ने डाला था ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनलिस्ट्स में? मैं नहीं डाला था। मैंने डाला था. मैं नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आपने डाला था शायद। मैंने डाला था, फिर मेरे को हटाना पड़ गया. शायद से। शायद ऑस्ट्रेलिया से नहीं बिकॉज जीता भाई. मैंने हटा दिया था। भाई मैं हटाना चाहता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया का चांस है. मेरे को सडनली मेरे को वेस्ट इंडीज से मेरे को उम्मीदें जाग रही हैं अभी. हो सकता है इंग्लैंड की जगह वेस्ट इंडीज दिख सकती है। ब्रो दैट, आई डोंट नो यार. वेस्ट इंडीज का मतलब वो है कि जब उनसे कोई कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता, दे प्ले रियली वेल. व्हेन तभी होता, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग, तब तब नहीं टुस्सी करते, निकलते हैं. तब तो पोर जाते हो। बट ऑल राइट, सो दैट वाज द वीडियो गाइस. हम्म। उस्ताद, कैन यू सी मी? मेरा इधर पता नहीं वीडियो फ्रीज हो गया. आई थिंक इट्स फ्रोजन, आई थिंक। हम्म। थिंक मेरा वाईफाई इज एक्टिंग अप. अरे कोई नहीं, चलो मेरे को आवाज आ रही है, आप कर दो वीडियो एंड हम आपकी तरफ से जेस्टर दे देते हैं यहाँ से। हाँ, ये। मेरी तरफ से, उस्ताद मेरी तरफ से तुम थैंक यू बोल दो सबको. सबको कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए. यू नो द ड्रिल. अपनी प्यारी सी ओके, मीठी सी आवाज में बोल दो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट दैट यू गाइस हैव बीन शोइंग अस। हमें ऐसी इसी तरह देखते रहें, हमें इंकरेज करते रहें। आगे और वीडियोस आती रहेंगी इसी तरह। और हमें अपनी प्रिडिक्शंस भी जरूर बताएं। हम जान के बहुत खुश होते हैं कि हमारी कोई वीडियो अगर देखता है और कमेंट करता है प्रिडिक्शंस के बारे में। एंड वी होप टू सी यू गाइस सून। और डटे रहें। ये मतलब मैच मेरे को लगता है पूरा ड्रामे वाला होने वाला है। पूरा मजेदार मैच होगा। पूरा पैसा वसूल मैच होगा। ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें अपने थॉट्स बताएं कुछ भी, अगर इफ यू वांट गाइस वांट अस टू ट्राई समथिंग एल्स, इफ यू गाइस वांट to know about, if you guys have any questions about cricket, of about any single thing that you guys want to know about, please let us know. We'll be happy to answer. Thank you so much guys. Jai Hind. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जॉब उस्ताद. आई थिंक आई एम गोना गेट यू टू ओपन द नेक्स्ट वीडियो. थोड़ा तुम्हें भी एज अ फ्लोटर ट्राई किया जाए. ठीक है, डन डन। All right. And about the next video, the match is on the 15th of Feb. So, guys, अपनी सहेलियों को, अपनी वाइफ्स को, अपने पार्टनर्स को 14th को बाहर लेकर जाओ. खुश रखो उनका, जो जी करे उनको वो आप लेकर दो. सो दैट 15th को आप ये मैच जो है एकदम फ्री होके, टेंशन फ्री होके आप एंजॉय कर सको, आप देख सको. Hmm. And Ustad, we are going to be discussing this match on the 16th. Yes, Steph, we will be.
Done. And similar to this video, we are just gonna club the review for this match and the preview for the next match against Netherlands, because बीच में 2 दिन का ही अगर गैप होता है, so it थोड़ा मुश्किल हो जाता है विद आवर scheduling के 2 videos ऐसे बैक टू बैक करनी. So we'll just ना do फेयर one एनफ। mega video like this one, and we'll talk about both the matches. Ustad, हम्म। thank you so much for your time. Again, धन्यवाद। I loved your energy today. मेरे को सीरियसली लग रहा है जब थोड़ा बढ़िया मैच आ रहा होता है ना, तुम्हारी एनर्जी एकदम अलग होती है. वो फिर देखने जरा ड्रामा देखने को मिलेगा, आई लव सम ड्रामा। ट्रू. ट्रू. चलो. Thank you, Ustad. I'll see you around. And thank you to all of you guys watching this video. For anyone who has shared our video, who's promoted us, who's spoken about us to your friends or family or whatever. We love you guys. We thank you. God bless.